السلام علیکم، خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ ریتی کی قلت کے پیش نظر روبو ریتی کے استعمال میں اضافے کا فیصلہ، کرشر مینجمنٹ اور بلڈرز کے ساتھ اجلاس۔ پرکال سے ایم بھکشاپتی ٹی آر ایس کے امیدوار، 23 مئی کو پرچہ نامزدگی کا ادخال۔ انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کا تنازعات کے درمیان آغاز۔ کشن باغ میں ایک خاتون کا اغوا اور اجتماعی عصمت ریزی، 3 ملزمین کی پولیس کو تلاش۔ اور چکرپلی میں جویلری شاپ میں پیش آئی سرقے کی واردات کا معمہ حل، سارقوں کی ٹولی گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں ریتی کی قلت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے روبو ریتی کے استعمال میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں کرشر مینجمنٹ اور بلڈرز کے ساتھ ہوئے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر جی ارونا کماری نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 2 کروڑ کیوبک میٹر ریتی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گجرات میں بھی روبو ریتی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے اور امریکہ اور یورپی ممالک میں بھی اس کا استعمال عام ہے۔ جی ارونا کماری نے بتایا کہ ریتی نکالنے پر عائد تحدیدات کی وجہ سے 29 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے اجازت حاصل کرنے کے لیے نمائندگی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جن مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں سے 1 کروڑ 70 لاکھ کیوبک میٹر ریتی نکالی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں R&B اور UTD کے انجینئرز سے تجاویز حاصل کی جا رہی ہیں۔ అదే విధంగా R&B ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అటువంటి ENC వాళ్ళందరితో కూడా ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టి ఈ రోబో శాండ్ను కన్స్యూమ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ శాండ్ను ఈ బ్రిడ్జెస్కి తర్వాత రోడ్స్కి గవర్నమెంట్కి ఉపయోగకరమైన బిల్డింగ్స్ వీటన్నిటి కూడా وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی 17 اور 18 مئی کو اللہ گڈھا اور اننت پور کا دورہ کریں گے۔ کرن کمار ریڈی 17 مئی کو پہلے اللہ گڈھا جائیں گے اور 18 مئی کو اننت پور کے لیے روانہ ہوں گے۔ چیف منسٹر دونوں حلقوں میں انتخابی ریلیوں میں شرکت کریں گے۔ جگن موہن ریڈی کے احساسات کے مقدمے کے سلسلے میں منگل کو گرفتار کیے گئے این پرساد اور برہمانند ریڈی کو CBI کی خصوصی عدالت میں 14 دنوں کے لیے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ عدالت میں پیش کیے جانے سے قبل CBI نے دلکشا گیسٹ ہاؤس میں پرساد اور برہمانند ریڈی سے پوچھ تاچھ کی۔ بعد میں این پرساد کو نمس لے جایا گیا جہاں ان کی طبی جانچ کی گئی۔ CBI نے پرساد اور برہمانند ریڈی کو 14 دن کی تحویل میں دیے جانے کے لیے درخواست داخل کی تھی، جس پر عدالت نے سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ بعد میں دونوں کو چنچل گوڑہ جیل منتقل کیا گیا۔ PCC صدر بی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ جگن موہن ریڈی کی گرفتاری سے امن و قانون کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کے دوران انہوں نے وضاحت کی کہ کانگریس جگن کی گرفتاری سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی۔ جگن کی گرفتاری سے عوام میں ہمدردی پیدا ہونے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال پر صدر PCC نے کہا کہ چور کی گرفتاری پر عوام ہمدردی کا اظہار نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 20 اور 21 کو پرکال کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام ضمنی انتخابات کے حلقہ جات میں دیہاتوں میں پارٹی کی کمیٹیاں پیدل دورہ کرتے ہوئے امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ 18 اسمبلی حلقوں میں کانگریس کامیاب ہوگی۔ TRS نے پرکال سے ایم بھکشاپتی کو پارٹی امیدوار بنایا ہے۔
टीआरएस की इंतखाबी कमेटी के सदर नशीन एन नरसिम्हा रेड्डी ने सरकारी तौर पर इसका ऐलान करते हुए बताया कि भिक्षापति 23 मई को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि 19 और 20 मई को सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव पार्टी कायदीन से परकाल की इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करेंगे। उम्मीदवार मुकर्रर किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए भिक्षापति ने कहा कि परकाल के अवाम सीमा आंध्रा की पार्टियों को सबक सिखाते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। वाज़ेह है कि भिक्षापति ने 2009 के इंतखाबात में भी टीआरएस के टिकट पर परकाल से ही मुकाबला किया था, लेकिन उन्हें कोंडा सुरेखा के हाथों शिकस्त हो गई थी। तेलुगु देशम लीडर वीरभद्रा राव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के एतमाद से महरूम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआर ने अपने दौर इक़्तिदार में क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुस्तहक़ अफराद को फ़ायदा पहुँचाया था। वीरभद्रा राव ने कहा कि मुतनाज़ा जीओज़ जारी करने वाले वज़रा ने अब तक सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का जवाब नहीं दिया है, जबकि उनकी हिदायत पर जीओ जारी करने वाले ओहदेदारों को जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर जीओज़ जारी करने वाले वज़रा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। విశ్వసనీయత అన్నారు. అసలు వీళ్ళిద్దరి మీద ఒకరి మీద ఒకరి విశ్వాసం ఉందా? బొత్స మీద కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి విశ్వాసం ఉందా? కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మీద బొత్సకి విశ్వాసం ఉందా? వీళ్ళిద్దరి మీద హైకమాండ్కి విశ్వాసం ఉందా? అక్కడ వాళ్ళకే లేదు, వాళ్ళ పార్టీలో వాళ్ళకే నమ్మకం లేదు. पीसीसी की तादीवी कमेटी का अहम इजलास जुमेरात को मुनक़िद होगा। इम्कान है कि इजलास में साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी के बशमूल दीगर 2 कायदीन को वजह बताओ नोटिस जारी की जाएगी। तादीवी कमेटी के सदरनशीन सत्यनारायण राजू ने इस बात का इशारा दिया है कि पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और बयानात की वजह से इन कायदीन के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी हो गई है। Our committee is meeting tomorrow at 11 o'clock. There are some cases are pending. We'll discuss tomorrow. ఉన్నాయి, మలంపల్లి ఉంది, మన విజయవాడ ఉంది, శివాజీ ఉంది, జీవన్ రెడ్డి మీద కూడా ఉంది. ఉన్నాయి 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 ఈ ఫైల్ అన్నీ ఉన్నాయి. రేపు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చెప్తే బాగుంటుంది. ఓకే, రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. రేపు మీకు ఈ టైంకి మీకు మెటీరియల్ పంపిస్తాం. ఏ టైప్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి సార్? పార్టీ యాంటీ పార్టీ యాక్ట్, ఈ లీడర్షిప్ మీరు ఏమైనా సుమోటోగా తీసుకునే అవకాశం ఉందా? చాలా మంది ఈ మధ్య పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. చేయాలండి. कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की जानिब से फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप स्कीमों से मुताल्लिक़ बयानात को गुमराह कुन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि मुल्क में आंध्र प्रदेश वो वाहिद रियासत है जो SC/ST के अलावा अक़लियतों को स्कॉलरशिप्स फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि जगन और चंद्रबाबू नायडू इन स्कीमों से मुताल्लिक़ गलत प्रोपेगेंडा करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने ज़िमनी इंतखाबात के बाद रियासत में सदर राज के निफास का अंदेशा जाहिर किया है। पार्टी की कौमी आमला के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण ने पेशक़ियासी की कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद रियासत गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से दो चार हो जाएगी। लक्ष्मण ने बताया कि परकाल नशिस्त के लिए पार्टी उम्मीदवार का ऐलान अंदरून 2 यौम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी महबूब नगर की तरह परकाल में भी अलहदा तेलंगाना की तश्कील के नारे के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। टीआरएस की जानिब से की जा रही तनकीदों को मुस्तरद करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस गैर ज़रूरी तौर पर JAC को निशाना बना रही है। उनका कहना था कि परकाल से बीजेपी की कामयाबी के बाद कांग्रेस पर अलहदा तेलंगाना के लिए दबाव बढ़ जाएगा। मिसबाहुल खुर्रा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद और नायब शेखुल जामिया निज़ामिया की इल्मी और दीनी खिदमात को तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब में खिराज तहसीन पेश किया गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मुसल्लियानी मक्का मस्जिद, मजलिसी कारकुनों और शहरियानी हैदराबाद ने मिसबाहुल खुर्रा मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी की इल्मी व दीनी खिदमात को मुनफरिद खिराज तहसीन पेश किया है। तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िदा जलसे तहनीत व एतराफ़ खिदमात में मिसबाहुल खुर्रा को एक फ्लैट, मोटरकार का खुसूसी तोहफ़ा और 1,11,100 रुपये का कीस-ए-ज़र पेश किया गया। बेतज़ीब रोशनियों से मामूर तारीख़ी मक्का मस्जिद के सहन में मुनक़्क़िदा जलसे तहनीत से खिताब करते हुए उलमा, मशाइख़
اور قائدین ملت نے مولانا کی دینی خدمات کی ستائش کی اور ان کی صحت و دراز عمر کے لیے دعا کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ حیدرآباد کے عوام خوش قسمت ہیں کہ انہیں سرزمین دکن میں پیدا ہونے والے علماء کرام سے فیض یاب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے مولانا عبداللہ قریشی الازہری کو بھی ایسے علماء میں شمار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے حیدرآباد کے مسلمان مولانا کی امامت میں نمازیں ادا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو بھی یاد کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ ان علماء کرام کی جتنی تعظیم و توقیر کی جائے کم ہے۔ اور حق تو یہ ہے عزیزان ملت کہ ہم ان علماء کرام اور ان حفاظ کرام کی جتنی عزت کریں وہ کم ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے دھلی جائے گی۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل کو حکم فرمائے گا کہ جتنے لوگ آج یہاں پر حافظ قرآن ہیں وہ تمام کے تمام کھڑے ہو جائیں، اور جب حفاظ کرام کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرمائے گا کہ اب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور جس کی جو تلاوت کے لحاظ سے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مقامات میں بلندی دے گا، اور حدیث شریف میں آیا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اور حفاظ کرام سے کہے گا کہ تم جانتے ہو ان لوگوں میں جو تمہاری خدمت کرتے تھے، تم ان کو چن لو، اور جب وہ ان کو پسند کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں پھر سے ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ اور ہم نے حضرت عبداللہ قریشی الازہری کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے تراویح کی نمازیں پڑھی، اور ہم خوش قسمت اس لیے بھی ہے کہ جب آپ اور ہم نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی اور انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، ہم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ کوئی اجمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بلکہ ہم نے محسوس کیا کہ کوئی عرب ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور آپ اور ہم نے آپ کو برسا برس عیدگاہ میرعالم میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہیں پر مجھے کہنا ضروری ہے کہ جہاں پر ہم نے حضرت عبداللہ قریشی الازہری کہ عید کے خطبے کو سنا، وہیں پر ہم نے مولانا عاقل صاحب کے بیان کو بھی سنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین پر ایسے جید علماء کرام اور حفاظ کرام کو پیدا کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان کی سرپرستی میں اپنا سفر، زندگی کا سفر کر رہے ہیں، اور 50 سال کا ایک سفر ایک بہت لمبا اور بڑا سفر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ قریشی الازہری نے سرزمین حیدرآباد کے نشیب و فراز کو دیکھا، اور آپ نے ہمیشہ مکہ مسجد کے بحیثیت خطیب کے آپ نے ملت کی صحیح طریقے سے رہنمائی کی، اور میں ہمیشہ حضرت سے کئی نازک مسئلے مسائل پر آپ کی رائے حاصل کرتا ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو صحت دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور کئی رمضان لکھے تاکہ ہم تمام کے تمام آپ کی خراج سے جو ہمیشہ ہم محسوس ہوتے آتے ہیں۔ اور میری اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کا جانشین پیدا کر دے۔ ابھی تو مجھے نظر نہیں آتا، مگر مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس عظیم الشان مکہ مسجد میں حضرت عبداللہ قریشی الازہری کے جانشین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرے گا، اور ہم تمام کے تمام انشاءاللہ تعالیٰ حضرت کی
दराज उम्र के लिए, आपकी सेहत के लिए दुआ फरमाते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेखुल हदीस जामी निजामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ ने कहा कि खिदमात का इतराफ शुक्र अदा करने के जुमरे में आता है और मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी की खिदमात का इतराफ करते हुए मुंतज़मीन ने मुसलमानों की तरफ से हक अदा कर दिया है। मौलाना क़ुबुल बादशाह शुत्तारी, मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी और मौलाना औलिया हुसैनी ने भी इस तारीखी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर मौलाना की हयात और खिदमात पर लिखी गई किताब की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। अल्लाह ताला ने मुझे आज के दिन इस नहीं रहूँगा जिन्होंने दामे दिल में सुखने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़ी मशक्क़तें उठाई। अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया में सुरख रखे और उनके दस्तबाजों को मजबूत करे और उनसे कौम की खिदमत ले और वो कौम की खिदमत करे और अल्लाह ताला उनको हर परेशानी से, हर मुसीबत से निजात अता फरमाए और उनको तरक्की की राह पर गामज़न फरमाए कि वो मुसलमानों की सही क़ियादत करें। जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद खादरी, उलमा, मशाइख और मजलिसी क़ायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। तनाज़ात के दरमियान इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का चारशंबे को आगाज़ हुआ। रियासत भर में हॉल टिकट्स की अदम इजराई से 20,000 तलबा इम्तिहान में शिरकत से महरूम रहे। हैदराबाद में हॉल टिकट्स न मिलने पर तलबा और सरपरस्तों ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू एहतजाज किया। इसके बावजूद कॉलेजेस इंतज़ामिया और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से तलबा को किसी भी तरह का कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं दिया गया। पुलिस ने बाज़ एहतजाजी तलबा और सरपरस्तों को गिरफ्तार कर लिया। तलबा तंजीमों ने कॉलेजेस इंतज़ामिया और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। बोर्ड के दफ्तर के रूबरू पुलिस ने मुबैना तौर पर एहतजाजी तलबा और सरपरस्तों को एहतजाज ख़त्म करने के लिए धमकियाँ भी दी। एहतजाजी तलबा ने वज़ीर तालीम से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। तलबा ने 4TV को बताया कि इम्तिहान की फ़ीस मुकर्ररा वक्त पर जमा कराने के बावजूद उन्हें हॉल टिकट्स जारी नहीं किए गए, जिसके लिए कॉलेज इंतज़ामिया और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ज़िम्मेदार है। करनूल और रंगारेड्डी में भी हज़ारों तलबा को हॉल टिकट्स न मिलने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। इस दौरान आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अहकाम के तनाजुर में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने एक बयान जारी करते हुए कॉलेजेस इंतज़ामिया को फ़ीस के इदखाल की तफसीलात फ़ौरन जमा कराने की हिदायत दी है ताकि हॉल टिकट्स की इजराई को यकीनी बनाया जा सके। IIIT में दाखिलों के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी फॉर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ने एलामिया जारी कर दिया है। दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 28 में से 16 जून तक दाखिल की जा सकती हैं। दरखास्तों के इदखाल की फ़ीस 150 रुपये मुकर्रर की गई है। RGUKT के वाइस चांसलर राजकुमार ने बताया कि 2 जुलाई को अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 19 और 20 मई को काउंसलिंग का अमल मुकम्मल होगा और 23 जुलाई से तालीम का आगाज़ होगा। वाइस चांसलर ने बताया कि इस साल भी 3000 नशिस्तों के लिए दाखिले होंगे। करीमनगर से अगवा की गई लड़की की वालिदा मकामी पुलिस के रवैये से मायूस होकर सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। करीमनगर की साकिन हमीदा बेगम ने बताया कि उनकी नौजवान लड़की शाहिदा का काफ़ी अरसा पहले अगवा किया गया था। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मकामी कलेक्टर और पुलिस से शिकायत किए जाने पर कार्रवाई में किसी भी तरह की पेशरफ्त नहीं हुई। हमीदा बेगम ने उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। इंसानी हुकूक कमीशन ने इस मामले पर 8 जून तक पुलिस को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। किशनबाग के 9 नंबर इलाके में एक खातून का अगवा करके उसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। ये खातून शादीशुदा है जिसे 2 बच्चे हैं। शेख अकबर नामी ऑटो ड्राइवर ने राजेंद्र नगर पुलिस से शिकायत की है कि उनकी बीवी का उसके पड़ोसी मोइन, सुलेमान और इब्बू ने मिलकर अगवा किया और उसके बाद इस्मत रेजी की। तीनों मुल्जिमीन फरार हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। मुतासरा खातून ने बयान दिया है कि वो रफ़े हाजत के लिए रात के वक्त बेदार हुई थी। इसी दौरान उनका अगवा किया गया और बाद में इज्तिमाई इस्मत रेजी कर दी गई। सूरत को निकली थी मैं 3:30। मेरा नाम खालिदा बेगम है। मैं सूरत को निकली थी 3:30 हो रहे थे। मैं देर लगा
लगा रही थी दरवाजे को, पीछे से आके मुंह दबा दिया, हाथ मोड़ दिए, लेके गए वहाँ ऑटो ने लेके जाके वहाँ से पकड़ के हमाम में लेके गए, लेके जाके ऐसा कर दिए। मोइन, सुलेमान, इब्बू, सज्जन, 3 जने थे। इब्बू 3 जने थे, ऑटो को गए थे। डीसीपी सेंट्रल जोन की टीम ने सरक़े की एक बड़ी वारदात के मामले को हल करते हुए सारिकों की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक संतोष नायक, लोहित दास, रामदास, विक्रम और शिवा नामी सारिकों ने दोमलगुड़ा चिकरपल्ली में वाक़ एक ज्वेलरी शॉप से 2 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत के जेवरात का सरखा कर लिया था। 7 मई को पुलिस ने शिकायत किए जाने के बाद केस दर्ज करते हुए सरक़े की इस वारदात की तहकीक़ात शुरू की थी। सारिकों ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि 6 और 7 मई के दरमियानी शब संतोष नायक और उसके दीगर साथियों ने नशे की हालत में ज्वेलरी शॉप में दाखिल होकर 11 सोने के बिस्किट्स का सरखा कर लिया था। पुलिस ने बताया कि सरक़े की वारदात का फ़ायदा उठाते हुए ज्वेलरी शॉप के मालिक सुधीर ने टैक्स अदायगी से बचने और इंश्योरेंस से रकम हासिल करने के लिए मसरूक़ा जेवरात की रकम को इंतहाई ज़्यादा बताया था। पुलिस का कहना है कि मसरूक़ा तिलाई जेवरात की असली कीमत 7,50,000 रुपये है। पुलिस ने मसरूक़ा जेवरात को जब्त करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने जुआ खेलने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 23,000 रुपये नगद रकम और 5 सेल फोन्स जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई की और MG नगर फसलांसर के एक ऑफिस पर धावा किया। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मज़ीद पूछताछ के लिए हुमायूं नगर पुलिस के हवाले कर दिया, जिन्हें पुलिस ने अदालती तहवील में दे दिया है। सर्कल इंस्पेक्टर P मधुकर स्वामी ने शहरियों से अपील की है कि वह जुआ और सट्टा खेलने वालों के बारे में कोई भी इत्तला हो तो पुलिस को मुत्तले करे। पुलिस उन्हें इनाम देगी और उनका नाम भी मख्फी रखेगी। राजेंद्र नगर में एक मकान से 15 तोले के तिलाई जेवरात और 10,000 रुपये नगद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि मकान के मालिक घर से बाहर एक तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। शाम जब लौटे तो घर का खुफल टूटा हुआ था और सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि मज़कूरा अशिया और नगद रकम गायब थी। रामचंद्रा नगर ईदी बाजार के रहने वाले 45 साला शेख नासिर अंसारी 12 मई से लापता हो गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मादन्ना पेट पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रेती की किल्लत के पेश नजर रोबो रेती के इस्तेमाल में इजाफे का फैसला। क्रशर मैनेजमेंट और बिल्डर्स के साथ सेक्रेटेरिएट में इजलास। परकाल से एम भिक्षापति टीआरएस के उम्मीदवार। 23 मई को पर्चे नामजदगी का इत्खाल। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का तनाज़ात के दरमियान आगाज। किशनबाग में एक खातून का अगवा और इज्तिमाई इस्मत रेजी। 3 मुल्जिमीन की पुलिस को तलाश। और चिक्कटपल्ली में ज्वेलरी शॉप में पेश आई सरक़े की वारदात का मुअम्मा हल। सारिकों की टोली गिरफ्तार। खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान।